अब पाकिस्तान से हम हर साल 1-2 स्टूडेंट्स ले जाते हैं, जो अच्छे क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स को आई थिंक सो कि इसमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, शुड कम फॉरवर्ड। Assalamualaikum and welcome to another episode of Legacy Abroad Odyssey. This is your host Jazak Qamar और आज का एपिसोड है सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स का फ्यूचर शेप नहीं किया बल्कि खुद भी एक इंस्पायरिंग जर्नी तय की है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन. So please welcome Mr. Mansoor Bhatt, the country manager of Pakistan for Leeds Beckett University. Sir, it's an honor to have you. कैसे हैं आप? Much obliged, thank you very much. जी सर, सबसे पहला सवाल, हाउ डिड योर जर्नी इन एजुकेशनल कंसल्टेंसी बिगिन? डिड यू ऑलवेज नो यू वुड एंड अप हियर और वाज इट समथिंग ग्रोइंग टू ओवर टाइम? No, I don't think so. I mean, my family background is pure education as well. My father was a teacher. My mother was also an Islamia. She used to teach here in Pakistan. But when I was in Dubai, where we used to study, so my mother was teaching as well. My career actually started more as in sales and marketing. So it was financial sector, health sector. Then when I moved to England for my master's studies in Greenwich, I think that's where I started to develop this interest in education industry. So it's been like 15 years now. Oh. So altogether it's like 29 years in the industry. But I think it's counseling is much more predominant than actual student consultancy. Yeah. Right. Okay. Sir, कोई ऐसा turning point या moment था जब आपको लगा कि yes, this is what I'm meant to do? Oh yes, I think it was back in 2009 when I was in an industry which was one of the leading industries in the world in health sector. Since I was a product sales manager, so what I used to do is to narrate the healthcare industry knowledge towards the consultants, which are of course it's the decision making in health industry. So I realized that communication was one of my best area, and disseminating knowledge, of course, whatever I had was my strength as well. So put it all together, the other industry which was thriving was the education industry. Still, I believe higher education marketing in Pakistan is very, very new. It's in infancy stage, and that's what I decided that to move from health sector to the higher education industry. All right. तो सर, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जर्नी है, आपने किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया और लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी की तरफ किस तरह से आए? जी बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने जब अपना ये स्टार्ट किया था वो NCUK के साथ किया था, नॉर्दर्न कंसोर्शियम UK. तो आपको पता है कि एट दैट टाइम इट वाज स्टार्टेड विद 13 यूनिवर्सिटी, विद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लीडिंग थी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, शेफील्ड, ऑल कंबाइंड टुगेदर. सो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था. तो आई गॉट टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज ऑल टुगेदर. व्हेन एज वी मूव्ड ऑन तो ये फिर बढ़ता गया. ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी आना शुरू हो गई, न्यूजीलैंडर केम इन, द US केम इन. लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिफोर कोविड आई. सो लीड्स बेकेट पे मेरा जाना हुआ. दैट वाज 6 months बिफोर कोविड. सो इन लोगों के साथ एकेडमिक के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी. सो पाकिस्तान में मैं फिर एक फ्रेंचाइज प्रोग्राम लेके आया था इन साइबर सिक्योरिटी. लीड्स बेकेट के साथ मेरा एक किस्म का आप समझ लव अफेयर वहाँ से स्टार्ट हो गया था. सो अबाउट 3 years ago तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई. सो फिर लीड्स बेकेट के साथ हो गए 3 years ago. या सो ऑल टुगेदर आप देखें तो ये तकरीबन 14 साल हो गए हैं with all of these leading names, with Manchester, Sheffield, Leeds, Bradford itself, Liverpool, John Moores. So NCUK में ना आपको हर ब्लेंड मिल जाता है. आपने काम NCUK के साथ स्टार्ट किया था और कितने साल काम किया? That was last 9-10 years. All right. और उसके बाद आप लीड्स बेकेट? फिर लीड्स बेकेट. All right. सर, आपने तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जैसे NCUK के साथ काम किया, तो लीड्स बेकेट में ऐसी क्या बात है सर, उसको क्या यूनिक बनाती है जो स्टूडेंट के लिए भी एक स्पेशल हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जी जगह बहुत पसंद थी मुझे. लीड्स इटसेल्फ एक बड़ी वाइब्रेंट जगह है. यूनिवर्सिटी इटसेल्फ हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड के साथ है. ऑफ कोर्स अदर यूनिवर्सिटी के साथ भी हैं. मैं ये समझ एकेडमिक्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही. मैं बहुत कंफर्टेबल था. फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ पोर्टफोलियो देखा इनका कोर्सेज का, वो बहुत डाइवर्स था. तो हर स्टूडेंट के लिए आपको हर चीज़ मिल जाती है. आपके पास 9 to 10 स्कूल्स हैं.
आपके पास कोर्सेज हैं फ्रॉम फाउंडेशन से लेकर मास्टर्स रिसर्च एंड डॉक्टरल स्टडीज़ तक, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उससे भी सबसे अच्छी बात है लोग हैं। आपका जो टीम वर्क है स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल यूनिट टू दी एकेडमिक एंड इंटरनेशनल ऑफिस, ये बहुत यूनिक है। बिल्कुल और ये इतना अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन है टीम वर्क का कि मेरे ख्याल से ये मुझे बहुत कम मैंने देखा है, तो इस वजह से मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक स्टार्ट हुआ, एंड आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे। और स्टूडेंट के लिए क्या लीड्स बेकेट स्पेशल ऑफर करती है, मतलब स्टूडेंट अट्रैक्ट हों लीड्स बेकेट की तरफ? देखिए, सबसे पहले जब स्टूडेंट जाता है कहीं पे भी तो सबसे पहले क्या चीज़ देखता है कि उसको एक्सपीरियंस क्या मिलेगा। एकेडमिक्स के साथ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस देती है। इंडस्ट्री का भी एकेडमिक्स का पढ़ाने वाले लोग इंडस्ट्री के साथ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए अप टू 50% है। अभी हम लोगों ने LLM के अंदर ऑलमोस्ट 30% स्कॉलरशिप अनाउंस की हुई, जहाँ पे LLB का स्टूडेंट जो है वो लोकल फ़ी के बराबर आ गया। और अब तो आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी ऑफर कर रहे हैं, ELLT। जी, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सफोर्ड ELLT काफ़ी डिमांड में था, तो अभी हमने लॉन्च किया है। सो नाउ स्टूडेंट हैज़ अ 5th चॉइस बिसाइड्स IELTS, PTE, लैंग्वेज सेट एंड TOEFL, तो अब आप ऑक्सफोर्ड के साथ भी आ सकते हैं। द अदर थिंग इज़ स्टूडेंट्स ने जो भी गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, स्पेशली विद एकेडमिक्स, और उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो भी काफ़ी अच्छा। जी, आई थिंक दैट मैटर्स, और ये फिर एक्सपर्टाइट करता है आपके ओवरऑल लिंक को। हाँ, दे ओके। और अगर कोई स्टूडेंट सर फर्स्ट टाइम यूके जा रहा हो, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट कैन दे, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये अभी मैं आपसे कर चुकी हूँ पहले भी। जी, क्या आप कुछ टॉप कोर्सेज ऑफर मतलब हाईलाइट करना चाहेंगे जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो? जी बिल्कुल। देखें, अब ये जो एरा है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा है। हम लोगों ने अभी जिस तरह क्रिएटिव कंटेंट का एक कोर्स स्टार्ट किया है, अब ये वो कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स पहले ढूंढते थे कि क्या हमें कहीं डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एक जगह मिल जाए। सो अब हमने क्या किया कि पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके लिए दे दिया। तो स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं कंटेंट राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में एंड यूजिंग दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू आ सकते हैं। हमारे पास क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है for student who would like to use up-to-date AI-based technologies, in different industry. But data science है students के लिए, so big data analyst जो बनना चाहते हैं in business, in sports, in any other subject, so वो उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी यस है जी, जिन्होंने फोरेंसिक्स में जाना है, जिन्होंने एथिकल हैकिंग स्टडी करनी है, आई थिंक सब बेस्ट को। और आज को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी को कर भी रहे हैं। यस, और नॉट टू आई थिंक यहाँ थोड़ा सा अनफेयर होगा, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंसेज में हम टॉप 100 की US रैंकिंग में है। नॉट ओनली दैट, बल्कि हम इस वक्त आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अंदर भी है, और गेमिंग एंड डिज़ाइन, क्रिएटिंग दैट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, थिएटर, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म में, इसमें हम 50% स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को। अब पाकिस्तान से हम हर साल 1-2 स्टूडेंट्स ले जाते हैं जो अच्छे क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स को आई थिंक सो कि इसमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, शुड कम फॉरवर्ड। ऑलराइट सर, इट्स टाइम फॉर अ क्विक गेम, रैपिड फायर। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने विदाउट थिंकिंग बस आंसर कर देना है, ठीक है? ऑलराइट। यूके या यूएसए? यूके। यूके ऑब्वियसली। ब्रेडफोर्ड या लंदन? Bradford. Yeah, Bradford. Bradford. Why not London? London in city. Too crowded. I've been there for a lot of years here. Marketing or finance? Marketing. Marketing. Day shift or night owl? Day. Day shift. हाँ जी, I'm kind of a person जो कि जिसकी biological clock बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। मतलब हम नींद अपनी पूरी करते हैं और फिर काम करते हैं। Oh yes. जी। Work from home or work from office? Work from home, obviously जी। Okay. Pizza or biryani? बिरयानी। जी। IELTS or Duolingo? Sorry? IELTS or Duolingo? I will say IELTS. IELTS. Direct entry or foundation route? Direct. Direct entry. Strict deadline या last minute magic? Strict deadline. Okay. Desi food in UK or local English breakfast? Local English breakfast, I would double prefer. Well, जब आप जा ही रहे हैं तो why not have a taste? नहीं, आपने भी कहा ना वो ऊपर आपने कहा बिरयानी, उसके बाद मुझे लगा शायद आप देसी फूड पसंद करेंगे। नहीं, मैं करता हूँ देसी फूड, लेकिन मुझे इंग्लिश फूड भी पसंद है साथ साथ जी। Okay. वेरी सिंपल। क्रिकेट और फुटबॉल? ऑफ कोर्स क्रिकेट। क्रिकेट। नहीं। ठीक है। और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है?
अभी मुझे पॉडकास्ट से थोड़ी देर पहले पता लगा था कि आप सॉन्ग्स में सुन जी मेरे जगजीत सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट, तो गजल्स में मैं काफी Oh. जी। ओके ओके ठीक है, बैक टू द बिजनेस। Yeah. सर अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है या डिमोटिवेट आफ्टर रिजेक्शंस या आइल्स की कम स्कोर में, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाउ शुड दे मूव फॉरवर्ड? देखिए स्टूडेंट्स को इसमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आइल्स के अलावा भी हमारे पास अब ऑप्शंस हैं, सो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दैट्स नॉर्मल। सो आपके पास ऑक्सफोर्ड है, आपके पास PTE है, सो यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। अब आइल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप एक मॉड्यूल रिपीट भी कर सकते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। या जी। और आपके हिसाब से आजकल के स्टूडेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक पॉइंट कौन सा है? स्टूडेंट्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जो है आप वेंचर करते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, और आई थिंक उनको अपना स्किल के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। सबसे वीकेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स का ये है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं लुकिंग इनटू अदर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। सो आई वुड से कि हर स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट था उसकी अपनी जर्नी होती है। मैं जब गया था वो रिसेशन का मतलब वर्स्ट टाइम थे, लेकिन मुझे जॉब इंस्टेंटली मिल गई थी, क्योंकि बिकॉज आई केप्ट ऑन ट्राइंग। और आई थिंक ये लक पे भी डिपेंड करता है। इट डज। उससे ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से लग तो है ही है, डेफिनेटली है, लेकिन यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कि अगर आप 10 दफ़ा हिट करेंगे, एक दफ़ा तो बुलजाई होगा आपका। एग्जैक्टली। सो इस वजह से डिमोटिवेट ना हो। दूसरों की जर्नी उनकी जर्नी होती है, आपकी जर्नी हमेशा डिफरेंट होगी, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसानों को हर एक को मुख्तलिफ ही बनाया। Yes. सो इसलिए आपका भी मुख्तलिफ ही होगा। जी। जब आप यूके गए थे, आपको फॉरेन जॉब मिल गई थी या कुछ महीनों बाद, या कितना टाइम लगा था आपको? 6 days to be exact, जी। 6 days? Yeah, 6 years working with Sky actually. All right. जी। So it was honestly amazing having you here. Thank you very Thank much. you जी। so much for coming. Thank you Legacy for having us here, Lease Packet at your premise. A very beautiful, माशाल्लाह आपकी एजेंसी है, and I wish you all the best. Thank you so much, sir. Lot Your of guidance, your journey, सब कुछ बहुत इंस्पायरिंग था। Thank you very much. Thank you for coming. तो दोस्तों, अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं और लेट्स पैकेट यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, so get in touch with Legacy Study Advisors and don't forget to subscribe our channel, क्योंकि हम यहाँ बात नहीं करते, डायरेक्शंस भी देते हैं। Signing off from Legacy Abroad Odyssey। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर। Stay global, stay inspired.